सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मिथ्या स्वर्ण परनिंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दरब कौ हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रैरूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलेत विकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम लय बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम लय। छतर चवर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर नाम के बोहित दसां पातशाहियां जी दी पावन जोत हाजर नाजर पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। मेरे सतगुरु जी के चरणों में लवाओ हाजरी। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज पंजवें गुरु नानक जिन्हां दा लासानी शहीदी पूरब जिहड़ा है वो 16 जून का आ रहा है तो गुरु के प्यारिओ कोई 16 जून मना रहा तो कोई दिन ऐतवार 19 तरीक नूं मना रहा। दिन जे शहीदी दे चल रहे ने जे दिन आपां उन्हां दी याद विच जुड़े हाँ कि मेरे सतगुरु पंजवें गुरु नानक इन्हां दिनां विच शहादत दा जाम पींदे ने। अज दा दिन उस महीने की शुरुआत है जिस महीने नूं तत्ता आख्या जाता है। अज उस महीने की शुरुआत है जिहड़ा महीना कहर का आख्या जाता है। पर सतगुरु ने बचन अज आखे सतगुरु जी ने ये बचन कहे आषाढ़ अज हाड़ चढ़िया ना आषाढ़ तपंदा तिस लगा। हुण ये गल का ध्यान रख लेना गुरु के प्यारिओ जदों सतगुरु जी आषाढ़ की गल करते हैं भाव महीने हाड़ की गल करते हैं ना अज का वो दिन है जदों इस महीने की आरंभता होती है भाव जिन्हों असी संग्रांद कह देंगे। सुभावक है संग्रांद शब्द अज साडे विच आ गया पर है महीने की आरंभता। वो महीने की आरंभता करदियां मेरे सतगुरु जी कहते हैं कि आषाढ़ तपंदा तिस लगा हर नहना जिन्ना पास जिन्हां दे कोल हरि नहीं, जिन्हां कोल सच नहीं, जिन्हां कोल परमात्मा निरंकार कंत नहीं ना,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ, ਸੜਦਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਪਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਤ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਲਓ ਅਸੀਸ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਖਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਹਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਪੜਪੁੰਜਾ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਵੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵੀ ਤਪਦੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਤਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੱਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਵੀ ਵੀ ਤਪਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਪੜਪੁੰਜਾ ਤਪਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰੇਤ ਉਹ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ ਦਾ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਲਾਦ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਵੀ ਤਪਦੀ ਪਈ, ਅੱਗ ਤਪਦੀ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਤਪਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਤਪਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਠੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਤਪਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਤਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਮਣੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਆ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ। ਨਾਮ
सुखां दी मणि। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। देखियो साडा मन किते विश्राम करता, भटकदा रहिंदा है, कदे इधर ते कदे उधर, कदे उधर ते कदे इधर। हुण ये ना समझना कि जे सतगुरु कहते हैं कि सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। कई बार असीं अर्थ ये कर जाने कि आ जिहड़ा नाम है ना, ये भगत जना के मन में रहिंदा, पर ऐसा नहीं है। ये भगत जना के मन में रहिंदा नहीं, भगत जना कै मन विश्राम। भगत जना के मन नूं विश्राम है इस नाम करके, भाव भटकदा नहीं। ये मन भटकदा नहीं, जमदा मरदा नहीं। मेरा मन टिकदा ही नहीं। मेरा मन कदे उतां, मेरा मन कदे हेठां। कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है, गुरबाणी का वाक है। कबहू जीड़ा, जीड़ा मीन माइंड, माई मन। कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले। पयाले का मतलब पाताल, ऊब चढ़त भाव आकाश। कदे देखिया कदी तो ये मन जिहड़ा है ना हंकार विच आंदा है, आकाश विच चढ़दा, ते कदे बिल्कुल निमाणा हो जाता है, बिल्कुल ही नरम हो जाता है। पयाले भाव पाताल विच चला जाता है, इन्ना नीवा चला जाता है, जमीन तो हेठां चला जाता है। ये मन है, पर कित्थे हेठां जाता है? अपराधी दूना निवै जो हंता मिरकाए। ये जिहड़ा मन है ना, अपने स्वार्थ की खातर पयाले भी पै जाता है, भाव नीवा चला जाता है, पर जदों हंकार में आता उदों आकाशी चढ़ जाता है, उपर हो जाता है। मेरा मन किते टिकदा? कदे मेरा मन गुरुद्वारे विच हुंदा है, ते कदे मेरा मन गुरु घर हुंदा ही नहीं, गुरुद्वारे हुंदा ही नहीं। तन बैठा हुंदा, शरीर बैठा हुंदा, मन किते कार विहार करदा हुंदा, मन किते बिजनस करदा हुंदा। शरीर जिहड़ा है, बॉडी जिहड़ी है गुरुद्वारे होंदी है, मन जिहड़ा रसोईयां विच ही, रसोई नहीं छड्डदा, घर बार नहीं छड्डदा, परिवार नहीं छड्डदा, बच्चे नहीं छड्डदा, किते ना किते दौड़िया फिरदा। हुण मेरे मन विश्राम नहीं है, पर भगत जना कै मन विश्राम है ना। जिहड़े भगत जन ने ना, तो हुण भगत कौन ने? जिन्हां दे गल विच माला वो भगत नहीं, ये गल ध्यान रख लेना। जिन्होंने मत्थे ते तिलक लाए ने वो भगत नहीं, ये भी ध्यान में रख लेना। जिन्होंने मेरे वर्गे चोले पाले ने ना चिट्टे चिट्टे, भगत नहीं। तुसीं कहोगे किवें, क्यों भगत नहीं? क्योंकि आसा दी वार विच गुरु नानक साहब महाराज ने क्लीयर कर दिता। मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब कहते ने कि हकीकत विच गल माला तिलक लाटंग पढ़ते हैं ना आप आशा जी की बार, उहदे विच साहब कहते गल माला तिलक लाटंग, दोए धोती बस्तर कपाटंग। हुण इत्थे ये पहरावा ही तो दसिया, यही पहरावा दसिया है। विशेष तौर पर जिहड़ा पहरावा है, दो धोती बस्तर कपाटन, ते अगे तत्त की गल करते कहते जे जानस ब्रह्मं कर्मं। कहते जे तू इनू समझे कि ये ब्रह्म का कर्म है, जे तू इनू समझे कि ये तो रब का कर्म है, गल विच माला पानी, तिलक लाना, चोले पाने, भेख बनाना, जे तू समझे ये ब्रह्म का कर्म है, रब का कर्म है, सच का कर्म है, जे जानस ब्रह्म कर्म। तो गुरु नानक साहब कहते मैं पता की आखदा, सब फोकट। हाँ, आ गल असीं सुनते नहीं, सब फोकट। की फोकट है जी? निश्चो कर्मं, जिहड़े उपर कर्म दसे ने ना, ये फोकट, ये फोकट निश्चो कर्म। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ नानक साहब महाराज कहते हैं कि ये निश्चय कर्म फोकट ने, पर असी फिर भी इन्हां ते भरोसा करते हैं, इन्हां ते विश्वास करते हैं, इन्हां नूं भगत समझ लैंदे आ। इस वास्ते ये भगत नहीं जिन्हें गल विच माला पाई, वो भगत नहीं जिन्हें चोला पा लिया। जपजी साहब की बाणी आप सारे पढ़ते हैं, तो तुसीं ध्यान दिता है मेरे सतगुरु जी ने ना बाणी अंदर आखिया, कहते बिन गुण कीते भगत ना होए। बिन गुण कीते
भगत ना होए। गुणा तो बिना, जे गुण नहीं, जे डिवाइन वर्चूस नहीं, जे गॉडली वर्चूस नहीं, भगत ना होए, नहीं भगत हो सकता। मतलब कि भगत वही है जिदे अंदर गुण ने। बिना गुणा तो भगती नहीं, तो जिदे अंदर गुण नहीं वो भगत ही नहीं। जिदे अंदर वर्चूस नहीं वो भगत नहीं है। हाँ, भेख दिखाए जगत को लोगन को, बस की ने हो सकता कि भेख दिखाता होवे पर अंदर अंदर प्यार तो नहीं है ना, अंदर वर्चुस तो नहीं है ना, अंदर गुण तो नहीं है ना। तो जे अंदर गुण नहीं तो बाहर जो मर्जी दिखा लवे। साहिब ने तो गल अंदर की की है। जदों बाहर वेख्या तो सतगुरु ने सब कुछ बाहर का खंडन कर दिता है, बाहर का सब कुछ खंडन किया। साहिब ने अंदर नूं वेख्या, अंदर नूं वेख्या। तो सच ये है, उही गुरु नानक जदों पंजवां रूप लैंदे ने, उही गुरु नानक जदों गुरु अर्जन साहब महाराज बनते हैं, उही गुरु नानक कहते हैं कि भगत जना के मन नूं विश्राम देण वाला केवल परमात्मा का नाम है। भगत जना के मन विश्राम उस सुखमणि सिर ले के हेठ जदों बाणी लिखते हैं, बाणी उच्चारण करते हैं, तो गुरु अर्जन साहब महाराज कहते हो बंदिया, आ मैं जदों तेरे जीवन वाल वेखदा ना, तू झूठ दे नाल बड़ा नाता बनाया होया है, झूठ दे नाल तेरा रिश्ता है, झूठ दे नाल तेरी गांठ साठ है, सच नाल तेरा प्यार ही नहीं। झूठ नाल बड़ा प्यार है पर सच नाल तेरा प्यार नहीं। तो साहब कहते हकीकत विच जे तैनूं ये शरीर मिलिया, जे तैनूं ये बॉडी मिली है, कदी तू अपने आप को पुछया कि आ शरीर मेरा सफला है या नहीं है? पुछया कदी? नहीं पुछया ना। गुरु अर्जन साहब महाराज इस जिस पदे का आप पाठ किया ना, इस पदे की लास्ट वाली पंक्ति विच मेरे साहब कहते हैं कि हकीकत विच बिन बूझे मिथ्या सब भए सफल दे, दे मीन बॉडी, दे मीन शरीर। हुण इत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज कहते हैं कि बिन बूझे, समझ तो बिना, नॉलेज तो बिना, ज्ञान तो बिना, जे तेरे को समझ ही नहीं है, जे तेरे को ज्ञान ही नहीं ना, तो मिथ्या सब पाए। मिथ्या मीन झूठ, मिथ्या मीन नाशवंत, कहते सब कुछ मिथ्या है जे तेरे को ज्ञान नहीं। सब कुछ खत्म है, झूठ है जे तेरे को ज्ञान नहीं। हाँ, सफल दे नानक, हे नानक ये शरीर सफल है, हे नानक ये बॉडी सफल है, ये देह सफल है। किवें सफल है जी? सफल दे नानक हर हर नाम लए। जे ये शरीर हर हर नाम ले, हरी नाम लैंदा है ना, जे ये शरीर जपदा है तो फिर ये सफल है। तो जे ये हर हर नहीं लै रहा, भाव कि उस हरी नूं, उस सच नूं, सच सिद्धांत नूं नहीं पछाण रहा, उसकी समझ नहीं लै रहा, उसका ज्ञान नहीं लै रहा, डिवाइन विजडम नहीं लै रहा, तो साहब कहते आ शरीर सफला नहीं आ, ये शरीर सफला नहीं है। सफल दे तां है जे हर हर नाम ले, नाम मीन ज्ञान, हर हर नाम ले हरि दा, सच दा जे ज्ञान प्राप्त कर लवे तो फिर ये शरीर प्रवान है, नहीं तो सब झूठ है, सब मिथ्या है। तो हुण ख्याल करना, जो कर्म मैं करदा ना जिदे करके शरीर सफला नहीं, हुण उहदे बारे सतगुरु दसदे ने। तो कमाल की गल है, इक्को ही पदे दे अंदर सतगुरु जी ने ना मेरे 8 कर्म दसे ने। जे 8 कर्म बदल लवां ना, 8 कर्म, 8 कर्म जे मैं बदल लवां, मेरिया आदतां बदल जान, ਜਿਹੜੀਆਂ मेरिया आदतां ने वो सतगुरु सामने रखते हैं। पर जे मैं बदल जावां तो मेरा शरीर सफला है, पर जे मैं कर्म बदलता ही नहीं फिर ये शरीर सफला नहीं, फिर ये दे सफली नहीं। हुण कदे गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत मनाने हर साल, इतिहास नाल भी जुड़ते हैं, हर साल असी शबीलां भी ला दें, हर साल असी गुरपुरब ते लंगर भी पका दें। असी आने लंगर छकते हैं, लंगर छक के चले जाने, तो कई ठंडे मिठे जल की शबील छक के चले जाते हैं।
पर जे बच्चों को पुछ के वेख्यो कभी किहड़े गुरु का पूरब है, कहते गुरु का पता नहीं, छबीलों वाला। अज छबीलों वाला पूरब सी, गुरु का पता ही नहीं। या इन्हों को पता होएगा शहीदी पूरब सी, किहड़े गुरु का सी पता ही नहीं। हुण जे सानू गुरु का ही नहीं पता अजे तक, तो गुरु का वचन किवें पता होएगा? मेरे गुरु ने क्या किया ये किवें पता होएगा? नहीं पता होएगा ना। असी हर साल मनाया, तो हर साल मनांदियां मनांदियां इन्ने साल बीत गए। तो गुरु के प्यारिओ, वही गुरु अर्जन साहब महाराज जी का अज जदों शहादत पूरब मनाना ना, बस एक गल मन विच धार लियो कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी का आ जिहड़ा वचन है ना, 8 आदतां वाला, 8 हॉबीज मेरी, जे ये मैं चेंज कर दियां तो मेरा शरीर सफला है। वो किहड़ियां ने 8 गल्लां, वो किहड़े ने 8 करम? गुरु अर्जन साहब महाराज सब तो पहला गल करते हैं स्वर्ण की। स्वर्ण मीन मेरे कान, ईयर्स। साहब कहते हैं मिथ्या स्वर्ण पर निंदा सुनै। मेरे साहब कहते कान जड़े ने ना झूठे ने, मिथ्या ने ये कान, झूठे ने ये कान। क्यों? क्योंकि पर निंदा सुना है। ये तो मेरा सुभाव है, ये तो मेरी हॉबी है, पर निंदा सुना है। पर निंदा, पर भी पराई, दूजे दी। कभी वेख्यो निंदा जो सुनता ना, अपनी निंदा सुनता किते अग नहीं लग जाती अपनी निंदा सुन के। मेरी कोई निंदा करे मैं तो एंगर हो जाना, गुस्से आ जाना भी मेरी निंदा किवें। पर हाँ मेरे गुआढ़ी की कोई निंदा करे फिर तो नहीं गुस्सा आता ना, फिर नहीं गुस्सा आता जे किते किसी होर दी कोई निंदा करे। पर जदों मेरी कोई निंदा करे उदों मैनूं गुस्सा आता। इहदा मतलब मेरी हॉबी है पर निंदा सुना। मेरे कान सुनना चाहते ने, दूसरे की निंदा सुनना चाहते हैं, अपनी नहीं। कोई दूजे की गल करे, मेरी ना करे, दूजे की गल करे, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा सुभाव बन चुका है। कदे वेख्यो जदों गुरुद्वारा साहब आने ना आपां, खास करके ये मैं भैणां मावां विच गल नोट की है। जे किते एक भैन कह देवे ना, नहीं भैणे आ फलानी की गल सुनी आ, फलानी की गल सुनी आ, उस वेले वो अलर्ट हो के कहते हैं नहीं मैं तो नहीं सुनी, की हो जा, चल तू लंगर छक लै पहला, उस तो बाद या आप दीवान सुन लीए मैं उस तो बाद तेन दसदी हाँ। तो सच जानियो चैन नहीं आना, दीवान में मन नहीं लगना भी पता नहीं की सी फलानी की गल। और कई ने तो कह देना दीवान बाद सुना, पहला गल दस दी, क्योंकि दीवान से मन ही नहीं लगना, पहला गल दस की है। पर जे किते वो भैन ट्राई करती हो वेखण वास्ते तो सारा दीवान लग जाए ना, दीवान की कोई गल पल्ले नहीं पैनी, मन में ओही 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 गल, तो बाद में फिर लंगर छकदे कहना नहीं भैन दस तो सही की गल सी, फलाने की की गल सी। तो जो उन्हें गल सुननी है ना या उन्हें दसनी है तो सुन के उन्हें कहना लै खोदा पहाड़ निकली चुई आए, तो गल ही कख नहीं सी, मेरा सारा दीवान खराब हो गया, सारा दीवान खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जिहड़ी गल वो चाहती सी ना सुननी, हुण वो गल नहीं सी। भावें निंदा सुनना चाहती सी, निंदा उहदे च है नहीं सी। हुण निंदा किते भी होवे, दूसरे की निंदा सुनन दा सानू रस आउंदा है। ये साडा पहला कर्म, कन्नां दा कर्म, कन्नां दा कर्म है, ये कन निंदा सुनते हैं। दूजा कर्म, दूजी हॉबी दसदे ने साहब, कहते हैं मिथ्या हस्त, हस्त मीन हैंड, हस्त हाथ नूं कहते हैं, मिथ्या हस्त पर दरब को हिरै, पर दरब, दरब कहते हैं माल स्वभाव, दरब माल स्वभाव, जिमें पैसा भी, मोबाइल भी, सोना भी, चांदी भी, ये दरब दे विच ही आ जाता सारा कुछ। माल स्वभाव, धन दौलत, असी धन दौलत कह दें ना कई बार कट्टा, वो सारा कुछ ही आ जाता। इस तरह दरब क्या जाता है, दूसरे का धन, दूसरे का माल।
हुण ये जिहड़े हत्थ ने ना, ये हत्थ पर दर्ब नूं हिरदे ने, भाव दूसरे दा कुछ खोंदे ने, खिसकांदे ने। किते नाल बैठा होया हत्थ दूसरे दा कुछ ना कुछ खिच लैंदे ने, किते किते मोबाइल खिच लैंदे ने, किते कोई पैसा लगे हत्थ खिच लैंदे ने, किते कोई होर सोना चांदी जां कुछ भी होवे वो हत्थ खिच लैंदे ने, है ना। हुण ये हत्थां दा सुभाਅ है, ये कोई ना कोई खो लैंदे ने। हिरें का मतलब खोना, ये खो लैंदे ने, खिच लैंदे ने। भावें कि इहदा संबंध मनण वाली सारियां नाल, पर इहदी हॉबी तो बन गई ना। हुण ये हत्थ झूठे ने, मिथ्या हस्त हत्थ झूठे। कौन कह रहा? गुरु अर्जन साहब महाराज, जिन्हां दा शहादत पूर्व आ रहा ना, वो गुरु अर्जन साहब महाराज कह रहे हैं तो असीं नोट करना है। पहला वचन तो हुण दूजा वचन कहते मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै, दूसरे का धन दूसरे की चीज़, राम राम जपना पराया माल अपना, है ना। ये हत्थां की आदत बन गई, मेरा ये कर्म बन गया। हत्थां दे नाल देण की आदत नहीं पई मैनूं, हत्थां नाल वंडण की आदत नहीं पई मैनूं, पर इन्हां हत्थां नाल मैं इकट्ठा करदा, इन्हां हत्थां नाल मैं खो लैना किसी का, लै लैना किसी का। हुण ये मेरा सुभाअ है, ये मेरा कर्म है। दूजा हुण तीसरी गल करते हैं मेरे साहब, तो अखां की गल करते हैं, आइस की गल करते हैं, नेत्रां की गल करते हैं। कहते हैं मिथ्या नेत्र, नेत्रां का काम की है? देखना। नेत्र देखते हैं ना, देखना काम है ना नेत्रां का। पर मेरे नेत्र की देखते हैं? मेरे नेत्र, मेरी आइस, मेरिया अखां जड़ियां ने वो की देखदियां ने? वो देखदियां ने रूप, रूप प्लस आद। गुरबाणी पढ़ते हो, ध्यान रखना, ये संधि शब्द है रूपाद। मिथ्या नेत्र, पेखत, पेखत तो भाव होंदा देखना, परत्रिया रूपाद। ते रूपाद जिहड़ा शब्द है ना, रूप प्लस आद, रूप आदि। हुण रूप आदि जदों आ जाता ना, उत्थे सांझी गल आती। परत्रिया, परत्रिया तो भाव होंदा पराई इस्त्री। रूपाद तो जदों शब्द आता ना, रूपाद, हुण इस्त्री वास्ते रूप आदि, दूसरे का रूप तकना। आपां वेख्या कई घरां दे विच सीनरी लगी हुंदी है पहाड़ियां दी। आपां देखिया कई बार लोग बाहर जाते हैं ना, पहाड़ां नूं वेखण चले जाते हैं, कहते बड़ा वेखण वाला है, उत्थे नज़ारा बड़ा वेखण वाला। वो की है जो असीं देख के आने? रूप ही है ना, एक कुदरत का रूप है। फर्क इन्ना है कि वो कुदरत का रूप है। किते असीं बदल वेखदे हां, किते असीं स्काई वेखदे हां, किते असीं पहाड़ वेखदे हां, किते असीं झरने वेखदे हां पानी दे, है ना। सारा रूप दे नाल संबंधित है। हुण अखां वेखदियां ने, पर रूप आदि वेखदियां ने। अखां वेखदियां ने, रूप वेखदियां ने। इस्त्री पुरुष का रूप वेख रही है, तो पुरुष इस्त्री का रूप वेख रहे हैं। असीं रूप ही वेख रहे हैं ना हर पासे। ये मेरा ही कर्म है ना। साहब कहते मिथ्या, झूठा है, ये अखां झूठियां ने, ये अखां झूठियां ने, क्योंकि परतरिया रूपाद यही वेखदियां ने। पेखत परतरिया रूपाद। तो हुण अगे गल करते हैं चौथी। साहब कहते मिथ्या रसना, रसना जिहदे नाल रस का पता लगता है। रसना मीन रस दसन वाली। रसना की है? जुबान। असी जीभ नूं कह देना ना रसन। जीभ के उत्ते किते थोड़ा जिहा ही माड़ा जिहा टच होंदा है, तो बंदा कह दिंदा ते नमक है, होंदा ना। माड़ा जे जीभ के टच होंदा, बंदा कहता ये तो शुगर है, ये तो गुला है, ये तो खंड है। वेखण नूं इक्को जिहा लगदा है, वेखण नूं इक्को जिहा लगदा है, पर जदों चखी दा टेस्ट का फर्क होंदा है। जे असीं उदां वेखीए ना, रंग उहदा भी चिट्टा, रंग उहदा भी चिट्ठा, वाइट होंदा ना। शुगर भी वाइट, नमक भी वाइट। तो मेरे वर्गे ने तो एक बारी देग भी वाइट की बना दी सी, मतलब नमक की। समझिया खंड हैगी है, पा दिता नमक।
है ना। हुण चख असीं सकदे नहीं सी, पता लगा कोई नहीं, जदों श्री साहब भेटा होगी, जदों वरताई संगत विच उदों जिहड़ा मूँह च पावे हाँ ये देख। तो बाद जदों मैनूं पुछया गया तो मैं कहा जी मैं तो खंड ही पाई सी। हुण वो कहते जी खंड पाई तो नमकीन किवें हो गई। फिर जदों चाह के उत्थे वेख्या ना पैकेट से शुगर की जगह पर साल्ट लिखिया सी, फिर मैं कहा जी रौंग मैं ही हाँ, गलती मेरे को हो गई। मैं अखां नाल वेख्या पर चखिया तो नहीं सी ना। हाँ जे किते मैं टेस्ट कर लैंदा फिर मैनूं पता लग जाना सी ये शुगर है तो ये नमकीन है ना। हुण रसना देखो साडी रस लैंदी है कि नहीं, रसना साडी रस लैंदी है ना। ये टेस्ट तो दसदी है पर रस लैंदी है किवें, असी स्वाद वेखते हैं, स्वाद इसे नूं रस कहते हैं। अज सब्जी नहीं स्वाद है ना, स्वाद लभदे हैं। हुण नमकीन है सब्जी, हुण नमक का स्वाद है ना उहदे च, पर वो स्वाद फिक्का पै गया। पर रसना जिहड़ी है ना होर रस लभदी है, कहंदे सब्जी तो ठीक है पर स्वाद नहीं है। नमकीन हैगा, नमक हैगा, साल्ट हैगा, पर स्वाद नहीं है। इसका मतलब स्वाद होर लभदी है, ये तिखे स्वाद लभदी है, ये स्पाइसी लभदी है, किते खट्टा मिठा लभदी है, किते ये पानीपूरी लभदी है, किते ये मंचूरियन लभदी है, किते ये पीज़ा नूडल वगैरह वगैरह होर अनेक रस ने ना। तो घर दे विच भी बंदा कई बार कई तरह के स्वादले पदार्थ बनाता है। क्यों? क्योंकि रसना मंगती है, ये जीवा मंगती है। इसे स्वादां विच लगी है ना, ये जीवा इसे स्वाद च लगी है ना। हुण एक गल ध्यान रखना, एक जीवा है शरीर की बॉडी की, पर एक जीवा मन की भी है। जदों मन की जीवा की गल करांगे ना, मन की रसना है ज्ञान इंद्रिय, क्योंकि मन अखां राही भी रस लैंदा, मन कन्नां राही भी रस लैंदा, मन जीवा राही भी रस लैंदा, मन स्पर्श राही टच राही भी रस लैंदा, मन नासका राही नेज़र राही भी रस लैंदा। इस वास्ते ये ज्ञान इंद्रिय ने ना जिहड़े, ये मन की रसना होंदी है। हुण इत्थे बॉडी की गल चल रही है, इत्थे मेरी हॉबी की गल चल रही है, तो साहब कहते मिथ्या रसना, झूठी है तेरी रसना, मिथ्या है तेरी रसना। क्यों? भोजन अनस्वाद। इत्थे कई बारी आपां उच्चारण करन लगिया ध्यान नहीं देते, कई इस तरह उच्चारण कर जाते मिथ्या रसना भोजन, तो फिर कह देंगे अनस्वाद। ध्यान रखना, बाणी पढ़न लग्या मिथ्या रसना कह के पाउस रुकना है, फिर कहना भोजन अनस्वाद। हुण साहब कहते हैं कि आ तेरा करा मैं चौथा कि तेरी रसना नूं ना स्वाद जिहड़ा है वो भोजन का आ रहा है, तो अनस्वाद होर स्वादां वल लगी हुई है। ये तेरी जिभ है, इनू भोजन खाण का स्वाद आंदा, तो भोजन तो इलावा ये होर रस लभदी है, चटपटे रस, अनेक तरह के रस लभदी, कल्ले भोजन नाल इहदी तृप्ति नहीं, ये रजदी नहीं रसना जीवा जिहड़ी साडी। हुण ये चौथा तो फिर पंजवीं गल करते हैं, इस तो अगे वो गल करते हैं पैरां की, वो गल करते हैं चरनां की। कहते तेरे पैर ने ना, जदों भी तू तुरदा है ना, तो तेरे पैर जिहड़े ने ना वो किसी ना किसी दिशा वाल तुरदे ने, पर तेरे पैर तुरते ही तां ने जे कुछ काम है, बिना काम तो तू पैर तुरते ही नहीं, तू जाता ही नहीं किते। जे तेरे पैर चलते हैं ना कोई कारण होंदा है, कोई ना कोई काम होंदा है, तां तेरे पैर चलते हैं। पर साहब कहते हैं कि असल विच वो पैर, तेरे पैर जिहड़े ने ना ये भी झूठे ने, मिथ्या चरण। इत्थे भी मैं बेनती करदे हां, ज़्यादातर मैं सुनिया पाठ करने वाले जो इत्थे भी पढ़ते हैं ना, वो भी इस तरह पढ़ते हैं कि मिथ्या चरण पर, तो फिर पाउस ला देंगे, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या चरण ते पाउस, तो फिर पढ़ना पर विकार को तावे। पर भी पराया, विकार तो भाव नुकसान करना, विकार पर विकार को तावे, पराए का बुरा करने वास्ते, पराए का कुछ बिगाड़न वास्ते
धावै धावे तो भाव दौड़ते हैं, भज्जे फिरते हैं। ये जिहड़े पैर ने ना किसी दूसरे का नुकसान करने वास्ते तो भज्जे फिरते हैं, पर सच वास्ते नहीं दौड़ते, सच वास्ते नहीं भजते, पर हाँ नुकसान करने वास्ते भजते हैं। किते मौका मिल जाए, किते पता लग जाए, उधर नूं ते दौड़ के जाता बंदा, पर जदों सच दे राह तुरना हुंदा ते पैर चलते ही नहीं, सच दे राह ते पैर तुरते ही नहीं। हुण संसार दे विच असीं हर जगह ते टाइम कढ लैंदे आ, साडे कोल समा है, जिन्नी मर्जी लाइफ साडी बिजी होवे। जे डॉक्टर कह देवे ना सानूं बई इन्ने तो इन्ने बजे तक आ 2 घंटे का समा कढ के मेरे कोल आ, तो असीं अपॉइंटमेंट ले लैंदे आ, तो असीं समा कढ लैंदे ना। जदों साडे कोल कोई इनविटेशन आंदा है, जदों साडे कोल कोई सद्दा पत्तर आंदा है, जदों कोई ब्याह शादी का कार्ड आंदा है, पूरी दिहाड़ी लग जाती है, तो पूरी दिहाड़ी वास्ते असीं जाना हुंदा है, असीं समा कढ लैंदे आ। लग जांदा ना समा, एक दिन भी कढ लैंदे आ, डॉक्टर कोल 2 घंटे भी कढ लैंदे आ। जे कोई असी सरकारी काम करवाना होवे, किते जाना होवे, उत्थे जाके टोकन लईदा है, तो बाद में पता लगता भी ये बारी साडी 3 घंटे तक आएगी, वो टोकन नंबर लैके असी 3 घंटे वेट कर लैंदे आ, समा कढ लैंदे आ ना। पर जदों असी कहिए भी गुरुद्वारा साहब जाना है ना, आई एम वैरी बिजी, ज्ञानी जी लाइफ बिजी है, बड़ी लाइफ बिजी, टाइम ही है नहीं गुरुद्वारा साहब आने का। 1 घंटे का प्रोग्राम होवे पर साढ़े कोल समा नहीं है, टाइम है नहीं। क्यों? क्योंकि पर विकार को ताब है, पराए का नुकसान करने वास्ते तो विकारां वास्ते ही ये मन दौड़ता है, मन दौड़ता है। तुसीं नोट किया होना, गुरुद्वारा साहब बैठे होइए, असीं कीर्तन सुनते होइए या कथा विचार सुनते होइए, जिहड़ा समा बन्निया होवे ना, किते 2 मिनट उपर हो जाण सही, बार बार घड़ी वाल ध्यान जाता ना, घड़ी वाल ध्यान जाता ना, है ना। मैं तो ये भी देखा एक बार, खिमा कर देना, माफ़ी चाहना, पर सच है कि ज्ञानी जी हुक्मनामा लैन लगे तो हुक्मनामा आ गया लौंग लंबा, कई बार आ जाता ना हुक्मनामा, शब्द वड्डा आ जाता। हुण ज्ञानी जी ने शुरू किया हुक्मनामा, उन्हें जो वेख्या एक संगत में गुरमुख बैठे सन, तो मैं भी संगत ही बैठा सी, बस इन्ना क्यों मेरे पिछवाड़े मेरे पिछे बैठे, बिहाइंड बैठे सी मेरे, है ना। वो जो ज्ञानी जी पाठ कर रहे हैं, हुक्मनामा पढ़ रहे हैं ना, हुक्मनामा हुण शब्द वड्डा सीगा, जो 2 मिनट बीत गए ना, तो मगरों आवाज़ आई, कहते ज्ञानी ने हुक्मनामा लिया शुरू किया या अखंड पाठ रख बैठा, क्यों कहते ज्ञानी तो अखंड पाठ ही आरंभ कर बैठा। मैनू बड़ा फील होया, मैं बाद उन्होंने गल की, मैं क्या जी कई बार हुक्मनामा वड्डा जाता है, लौंग होंदा है, शब्द वड्डा है, तो हुण सारा शब्द पढ़ना है हुक्मनामा नहीं। कहते ज्ञानी जी टाइम वाल ध्यान रखीदा है, टाइम देखना पैंदा है, 4 मिनट का शब्द कोई होर शब्द पढ़ लो। मैं कहनी ये साडी मर्जी थोड़ी होंदी है, तो गुरु साहब ने प्रकाश होए ने जो सानू हुक्म दिता है, साडा फर्ज है वो पढ़ना। चलो गल मुक्की, पर मैं ये गल वेखी, नोट की, उन्हां दी नहीं है, पर आम प्रचलित गल मैं ये देखी है भी कई बार ना टैलीविजन के सामने बैठा बंदा मैन देखता है, पिक्चर देखता है, फिल्म देखता है, कुछ नहीं घर का काम करता, उत्थे ही बैठा। कई सिनेमे भी जाते हैं, जाके देखते हैं, 2.5 तो लैके 3 घंटे की पिक्चर, 2.5 तो लैके 3 घंटे की मैन देख के ना जो खत्म होती है ना, एंड हो जाता है, उस तो बाद इन्ना टाइम लंघ गया पता ही नहीं लगा। हुण उत्थे 3 घंटे पता नहीं लगते, तो गुरुद्वारे 2 मिनट भी पता लगती भी अखंड पाठ होया, अखंड पाठ आरंभ कर बैठे, है ना। हुण ये साडा सुभाव बन गया ना, साडा सुभाव बन गया, साडी सोच बन गई। तो सच ये है कि जदों बुरे पासे जाना, जदों विकारां वाल भजना, उदों तो भजणगे ये पैर, उदों तो दौड़नगे ये पैर, पर जदों चंगे वास्ते जाना होवे ना, उदों बंदा आल मटोल करता है, उदों बंदा तुरदा ही नहीं। ये पैर सच दे राह चलते ही नहीं, सच दे राह ते तुरदे ही नहीं। इस वास्ते ये सुभाव मेरा बन गया। तो गुरु अर्जन साहब महाराज ने ना मेरे सामने ये गल कही, भलिया आ भी तेरा सुभाव गलत है, ये पैर झूठे ने जेड़े पर विकार नूं भज्जे फिरदे ने धावैं। तो फिर 6वीं गल करते हैं, कहते मिथ्या मन, इत्थे भी बेनती करा, मिथ्या मन पर ऐदा नहीं पढ़ना,
सारी अद्दा पढ़ी जाते मिथ्या मन पर, फिर कहते लोभ लुभावे। मन ते आके विश्राम देना है। अगली पंक्ति भी ध्यान रखनी है, मिथ्या तन नहीं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, मिथ्या तन नहीं। तन क्यों नहीं है जी? तन ते आके पाउस है। जदों तुसी पाउस सही लाओगे ना, तुहानूं समझ आनी बाणी दी। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा। मिथ्या तन नहीं कहना, मिथ्या तन फिर कहना नहीं पर उपकारा। वो तन मिथ्या, वो तन झूठा जो परोपकारी नहीं है। पर पहला मन की गल करिएगा, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। ये जिहड़ा मन है ना झूठा है, ये मन हकीकत विच सच्चा नहीं। जे पर लोभ लुभांदा है, जे किते पराया धन वेखदा, पराया रूप वेखदा तो ये अंदर लोभ आ जाता है ना, लुभाएमान हो जाता है, लोभी हो जाता है। तो कहते ये मन झूठा है, अजे मन सचियार नहीं है, अजे मन सच्चा नहीं है। जे इहदा लोभ दूसरे ते टिकिया होया, आ भी मेरा, आ भी किते मैनू मिल जाए, आ भी मैनू मिल जाए। जमीन वेखदा तां कहंदा, मन नूं पता लगदा, मन चाहता ना भरा दी जमीन भी मेरी हो जाए, मन चाहता ना गवांढी की जमीन भी मेरी हो जाए, मन चाहता भी आ हाउस भी मैं ले ला, मन चाहता आ गड्डी का मालक बन जा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी किते मैनू मिल जाए, आ भी किते मैनू मिल जाए। कई तो मैं इहो जिहे देखे जिहड़े सुपने लैंदे ने। सुपने पता की लैंदे ने? किसी का पैसा डिग जाए, सानू लभ जाए। ये सच है, ये सच है। किसी ने मैनू दसिया, कहते ज्ञानी जी मैं रोज़ सुपना लैना, रोज़ मैनू इहो जिहे सुपने आते हैं, मेरे मन में आता कि मैं जाता होवां तो किसी का नोटां दा मंडल डिग्या होवे, किते मैनू किते चंगे सोहने पैसे लभ जाण, ये मेरे मन अंदर आंदा। मैं क्या आंदा क्यों? कहता एक दो तीन बारी ना रिंगट लभ पे सीगे, कई बारी कोइन डिगे होंदे ने किसी ने, तो कई बारी किसी का 5 का नोट 10 का नोट डिग जाता। हुण जिन्हों 5 का 10 का मिल गया ना, पर लोभ लुभावे, अंदर लोभ पैदा हो गया भी 10 का डिग्या, किते मोटे भी डिगदे होणगे ना किसी के। हुण वो मन में आता भी किसी के मोटे पैसे डिगण तो मैनू लभ जाण। तो मैनू कहना ज्ञानी जी अरदास करो। मैं कहा काहदी जी? कहते एक सुपना तो सच हो जाए ना, रोज़ 2-2 सुपने देखदा, किते एक सच हो जाए। फिर समझाना पैंदा, भलिया तैनू हथ काहदे वास्ते दिते, तैनू पैर काहदे वास्ते दिते, तैनू मत काहदे वास्ते दिती? तेरे नाल तो पंछी चंगा अपना आलना बनाने वास्ते आप जाके तिनका तिनका इकट्ठा करता। कभी देखिया बर्ड आलना बनाता है, अपनी चुंझ दे नाल मेहनत करता, आप जाके लैके आंदा है। वो नहीं किसी दूसरे ते आस रखता, अपने बच्चों वास्ते चोगा चुगण जाता है, वो नहीं किसी होर ते आस रखता। तो तू बंदा हो के आस पराई रखदा, पर लोभ लुभावें, पराए लोभ ते जीना पिया। हाँ किते पैसा किसी होर दा है, मेरा बन जाए। कोई बजुर्ग होवे ना, कोई बजुर्ग नेड़े तेड़े उहदे कोई ना होवे, पैसे वाला होवे, तो कई बारी मन अंदर लोभ आंदा भी बजुर्ग की सेवा कर ली, हुण ते जाण वाला ही है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ मैनू मिल जाना। 4 दिन सेवा करके जे किते सारा कुछ मिल जाता है, हाउस मेरे नाम आ जाता है, गड्डियां मेरियां हो जांदियां ने, तो फिर की है हर्ज है? पर मन लोभ है, पर लोभ लुभावे। अपनी मेहनत करके नहीं कमाना चाहता, पर दूसरे के उत्ते नज़र रखता है। तो साहब कहते इहो जिहा जिहड़ा मन है ना, जिहड़ा पराए धन के उत्ते, पराए माल के उत्ते लोभी होया होया, ये मन झूठा है, ये झूठा मन है। हुण तन की गल करते हैं साहब, तो तन की गल करदिआं कहते हैं ये 7वां है, 6वां मन है, 7वां तन। कहते मिथ्या तन, केड़ा तन मिथ्या जी? नहीं परोपकारा। हुण कदी वेखिओ आ तन दे नाल परोपकार किता? परोपकार किसी का भला, इस शरीर के नाल किसी का भला किता? कदे भी नहीं किया। ये तन जिहड़ा ना परोपकार करता ही नहीं, ये तन मेहनत करता तो अपना मेहनताना मंगता।
ये तन जे किसी की मेहनत करता ना, किसी की हैल्प भी करता तो कहता ये बदले मैनू कुछ मिल जाए। पर जे हुण कुछ लैण की इच्छा रख के कर रहा है तो परोपकार का नहीं है ना, वो तो मेहनत है, वो तो कामकार बन गया। बंदा जो कुछ इस तन नाल करता पिया, किसी वास्ते भी करता पिया, अंदर कुछ इच्छा रख के कर रहा, वो मेहनताना लै रहा तो कुछ भी उपकार नहीं। पर तन जिहड़ा है परोपकारी होना चाहिए। इस शरीर के नाल कुछ भला करना चाहिए, इस शरीर के नाल किसी का फायदा करना चाहिए। पर इस तन के नाल असी कदे किसी का फायदा नहीं किया, बल्कि असी नुकसान किया, नुकसान ही किया ना। साडे अंदर प्यार घट गया, साडे अंदर जैलसी ज़्यादा, असी जैलस होने। जदों जैलस होने असी दुखी होने। कदे वेख्या तुसी खुश कदों तुसी हुंदे हो? उदों ही खुश होंदे हो ना जदों तुहाडे कोल कोई बहुता आ जाए, कोई धन बहुता आ जाए, पैसा बहुता आ जाए, पोस्ट मिल जाए, तुसी खुश होंदे हो ना, खुश होंदे हो। एक बारी गया मैं किसी के नाल, कहते ज्ञानी जी घरे लैके चलना तुहानूं। 7 बजे जी चले गए असी, तो जदों घरे गया ना कहते बस 5-4 मिनट वेट करो। वेट की जी 5-4 मिनट, तो 5-4 मिनट बाद एक नवी गड्डी आई, नवी कार लैके आए, वधिया कार, वधिया कार लैके आए। कहते ज्ञानी जी आ कार आ जी पहली कार है ना, ये डबल कीमत की है, डबल मुल दी। मैं क्या अच्छा जी। ज्ञानी जी को किस वास्ते बुलाया? कहते अरदास करो, आ गड्डी आपां नूं दित्ती है महाराज ने, शुकराना करो, अरदास करो, नाले इहदे च तुहानूं बिठा के घुमाने आ थोड़ा जिहा। चलो जी ठीक है जी, अरदास की, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। पर जदों मैं अरदास करके हटिया ना, तो मैं वो चेहरे वाल देखा तो थोड़ी जी उदासी। मैं क्या की गल जी, ये तुहाडी खुशी सी बड़ी, तो हुण थोड़ा जिहा चेहरा ढिला जिहा पिया। कहते कोई नहीं ज्ञानी जी, बस हुण फटाफट तुसीं अरदास करो, तो जो कुछ छकना फटाफट छकीए, फिर आपां निकलीए। मैं कहा जी कोई गल जरूर हुई है, मैनूं जापदा पिया। कहता ज्ञानी जी होर गल कोई नहीं हुई, गल इन्नी को हुई है। कहता मैं इन्नी महंगी कार लैके आया अपने गुआढ़ी नूं दिखाउण वास्ते भी साडे कोल पैसे हैगे ने। कहता इनू पता नहीं किन्ने दस दिता मैं कार लई है। कहता मेरे नालों ना 50,000 महंगी वाली कार लिया के खड़ी कर दी। कहता मूड खराब हो गया सारा। कमाल की गल है जी, वो खुशियां ही गई, वो तेरी कार तो उन्ने दी है, तेरी खुशी क्यों घट गई है? जे वो 50,000 वध की लै आया कार, इंस्टॉलमेंट भी तो उन्हें ही देनी है ना, पर वो कार वेख के खुशी गई। किते मैं भी इस तरह का तो नहीं। जदों जैलसी होंदी है ना मन में, तो सच जानियो आ जैलसी के कारण असी दुखी होने। बाहरों भैणां लैके आंदियां ना सूट शॉपिंग करके, बड़ा वधिया सूट लैके आंदियां ने, महंगा सूट लैके आंदियां ने, बड़ा खुश होकर पांदियां ने, पर किते गवांढण उस तो महंगा पा लवे, खुशी चली जाती, लै मैं क्यों नहीं हो लिया। हुण फिर मन में आ जाता भी मैं ये तो भी महंगा लैके पाऊँ। यही चीज़ बन गई ना साडे विच, विखावा, शोशाबाजी, शौक। पर साहिब जी कहते हैं कि ये तन नूं तू सजाण लग गया, पर उपकार वाल नहीं दौड़िया, पर हाँ जैलसी दे विच आके दूजे का भी नुकसान करता है, अपना भी नुकसान करता है। पर इस तन दे नाल परोपकार कर, जैलसी छड्ड, नफरत छड्ड, अंदर प्यार पैदा कर। मिथ्या तन, वो शरीर मिथ्या नहीं परोपकारा, जिहदे नाल परोपकार नहीं हुंदा। ते अगली जिहड़ी 8वीं गल ते 8वां कर्म पता किहड़े दसदे ने? 8वां कर्म कहते ने मिथ्या बासलेत बिकारा। बासलेत, बास मतलब स्मैल, बास मीन स्मैल। मिथ्या बासलेत बिकारा। देखिया तुसी माड़ा जा ऐ करके गुआंढियां घरे तड़का लगता पई, आ फलानी चीज़ में तड़का लगता पई, वासना है ना, ਉਹਦੇ घर ਤੇ आ फलानी चीज़ बनती पई, हुण कुछ भी तड़का लगे है ना। पर कमाल की गल है कि तेरी जिहड़ी ये नसक है, जिहड़ी नेज़ल है ना, ये समैल लैंदी पई है, पर इनू समैल चंगी लगती है। इनू जिहड़ी समैल चंगी लगती है उधर नूं ये दौड़ती है, जिहड़ी समैल चंगी नहीं लगती। तुसीं वेख्या चुन्नियां जिहड़ियां नक ते आ जांदियां, रुमाल नक ते आ जाते हैं, जिहड़ी वासना चंगी नहीं। पर जिहड़ी तैनूं चंगी लगती है
वो तो लंबे साह नाल वासना लेना, फुल्लां दे कोल जाना वासना लेना, परफ्यूम जिहड़ा बार बार सुंघ के लेना भी आ परफ्यूम वैरी गुड, आ परफ्यूम जिहड़ा बहुत नाइस है, आ समैल बड़ी चंगी है। पर साहब कहते ने बेकार समैलां ने, ये समैल जिहड़ी है ना बेकार है, ये वासना जिहड़ी बेकार है। हुण ये 8 कर्म ने, फिर गिन लवो शुरू तो। पहला सी स्वर्ण, स्वर्ण तो भाव कन। हुण साहब जी कहते ने तेरे कन झूठे ने। दूसरा सीगा गुरु साहब कहते ने हथ, तीजा सीगा नेत्र अखां, चौथा है रसना, ते पंजवें ने पैर चरण, छेवां है मन, सतवां है तन शरीर, अठवां बास नेत विकारा मेरी नासका। ये 8 कर्म ने ना। हुण साहब कहते जो तू करदा पिया मिथ्या है, बिन बूझे मिथ्या सब है। बिना बूझे तो ये 8 दे 8 मिथ्या ने। हुण अज गुरु के प्यारिया ये गल ध्यान विच रख, जेड़े गुरु अर्जन साहब महाराज नूं मैं शहादत ते नमस्कार करनी है ना, उहदा ये वचन ते मन लवां, मैं ना कन मिथ्या रहन दियां, ना अखां मिथ्या रहन दियां, ना मैं रसना मिथ्या रहन दियां, ना मैं हाथ मिथ्या रहन दियां, ना मैं पैर मिथ्या रहन दियां, ना मैं नासका मिथ्या रहन दियां, ना मैं मन मिथ्या रहन दियां, ते ना मैं तन मिथ्या रहन दियां। भाव कि ये 8 दियां 8 आदतां मैं बदल लवां, ये 8 दियां 8 आदतां मैं बदल लवां, मैं चेंज लेवां अपने आप अंदर। ते साहब कहते फिर ये सफल दे है, फिर तेरा शरीर सफला है। नहीं तो फिर जिहो जिहा जानवर आया जन्मिया, खादा पीता, बच्चियां नूं जन्म दिता, बच्चे पाले, अखीर मर गया। यही कम जे मेरा रहा तो करतूत पशु की होई ना, मानस जात होई ना करतूत पशु की। मानस जात लोक बचारा करे दिन रात। हुण असी ये पशुआं वाली करतूत छड्डनी है। ये 8 दे 8 मेरी हॉबी जिहड़ी है ना, इनू चेंज करना है, इनू चंगे वाल प्रेरना है। तो गुरु के प्यारिओ साडा मनाया पूरब सफला है, साडा शरीर सफला है। गुरु करन कृपा मेहर करन, बिन बूझे मिथ्या सब है। सब समझ तो बिना अज असी समझ ले लईए कि असी चेंज करना। ते सफल दे नानक हर हर नाम ले, हरि का नाम लैंदे हरि का ज्ञान प्राप्त करदे ये शरीर सफला हुंदा है। ते साडा शरीर सफला होवे। गुरु करन कृपा ते ये पावन बचन साडे हिरदे वस जावे। आओ बहुत बहुत धन्यवादी हाँ सब तो पहला मेरे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हों ने अपार कृपा मेहर की है। क्योंकि जिन्नी देर सतगुरु अंदर ना बसे, जिन्नी देर ज्ञान अंदर ना बसे, जिन्नी देर गुरु सिर ते मेहर का हथ ना रखे, भाव के अकल दे विच ना आवे, उन्नी देर मैं किवें विचार कर सकता। इस बात सब तो पहला गुरु का धन्यवाद, अते उस तो बाद समुची संगत पोट कलाम की संगत का तह दिल तो धन्यवादी हाँ। तो तीजे नंबर पर गुरुद्वारा साहिब पोट कलाम प्रबंधक कमेटी का धन्यवादी हाँ, जिन्हों ने आ समा बख्शिया है, तुहाडे दीदार करन दा ये समा बनया है। अते चौथे नंबर पर धन्यवाद है मलेशियन गुरुद्वारा कौंसल का, जिन्हों ने 1 महीने का मेरा टूर आरंभिया है। अते गुरुद्वारा साहब सुबंग का धन्यवाद बनता है, क्योंकि 4 साल तो हैड ग्रंथी की सेवा मैं गुरुद्वारा साहब सुबंग कर रहा। तो 4 साल बाद हुण मैं वापस इंडिया परत रहा। 25 तरीक तक जून तक मेरी ड्यूटी गुरुद्वारा साहब सुबंग विखे 4 साल पूरे होंगे ने। 25 जून नूं 24 जून की मेरी वापसी है। तो मैं बेनती की गुरुद्वारा साहब सुबंग प्रबंधक कमेटी नूं कि मैं मलेशिया थोड़ा घूमना चाहता। उन्होंने मैनू 1 महीने की छुट्टी दी है टूर वास्ते। मेरी फेयरवैल प्रोग्राम करके पिछले महीने मैनू फ्री कर दिता। अते गुरुद्वारा कौंसल नूं मिल के ये जिहड़ा प्रोग्राम, क्योंकि गुरुद्वारा कौंसल ने सुनिया सी अते उन्हां दा
अपना विचार बनया भी ज्ञानी जी नूं असीं टूर कर दईए, तो उन्होंने ये टूर मेरा बनाया। तो उहदे अनुसार अज आप जी के दीदार, आप जी के दर्शन करने वास्ते गुरुद्वारा साहिब कोट कलांग मैं पहुँचा हाँ। आप जी का अते प्रबंधक कमेटी का, गुरुद्वारा साहिब सुबंग का अते कौंसल का तह दिल तो धन्यवाद है। मैं सारी संगत के चरणों में एक बेनती करना चाहना। 4 साल पहला जदों मैं गुरुद्वारा साहिब सुबंग आया सी, आंदियां सार ही क्लासां शुरू हुई सन, जो गुरुद्वारे का मेन परपज़ है। गुरुद्वारा साहिब का मेन परपज़ की है? गुरुद्वारा साहिब जिहड़ा है ना, वो सिक्खी का स्कूल है, सिक्खी की यूनीवर्सिटी है। गुरुद्वारा साहिब आके कुछ सीखना है। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, सोझी पाने वास्ते आना, सोझी लैण वास्ते आना, ज्ञान लैण वास्ते आना। तो गुरु के प्यारिओ 4 साल पहला गुरमत क्लासां शुरू कीतियां सन, गुरबाणी अंडरस्टैंडिंग क्लास शुरू की सी। पहला फेस टू फेस क्लासां लगदियां सन, जिहदे विच 1 घंटा शब्द की विचार, गुरबाणी की विचार, अते उस तो बाद अद्धा घंटा क्वेश्चन आंसर सैशन होंदा सी। ते तुहानूं सारिआं नूं पता कोविड आ गया, कोविड-19। तो जो कोविड-19 का समा आ गया, क्लासां बंद हो गई, गुरुद्वारे बंद हो गए। पर थोड़े कुछ दिनों बाद ही बच्चों दी क्लासां शुरू हुई ऑनलाइन। तो जिन्ने मेरे स्टूडेंट सन प्यार वाले, उन्होंने कहा कि ज्ञानी जी तुसी भी ऑनलाइन करो, समय नाल चलना साडा हक है। तो फिर उस समय जूम मीटिंग के राही क्लासां शुरू हुई, मतलब कि महीना 1.5-2 विचों मिस हुई, फिर उस तो बाद चालू रही। हुण जदों मेरा जाण का समा आया, मैं इंडिया जा रहा, तो जिहड़े स्टूडेंट ने जूम क्लास दे आ, जिहड़े जूम मीटिंग के राही क्लास के नाल ज्वाइन ने, उन्होंने कहा ज्ञानी जी तुसी इंडिया जा रहे हो, भावें वापस परतन का अजे विचार नहीं है, इंडिया जा रहे हो, तो असीं चाहते हैं भी ये क्लासां बंद ना हो, ये क्लासां कंटीन्यू रखो। तो मेरे मन में अज विचार आया कि जे टूर भी बन गया, महीने की छुट्टी भी मिल गई, तो उन्होंने वालों बेनती है, मेरे वास्ते तो हुक्म है ना, स्टूडेंटां वालों बेनती, मेरे वास्ते हुक्म है भी ये कंटीन्यू रखियो। तो विचार बनया भी जिथे भी मैं जाना, उत्थे मैं बेनती करया करदा कि जिहड़ी जूम मीटिंग क्लास है, उस क्लास दे विच तुसीं ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि जिथे मर्जी कोई होवे वो ज्वाइन हो सकता है। हफ्ते की क्लास होंदी है, जिहड़ी कंटीन्यू क्लास चल रही है, वो मंगलवार की चल रही है, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11:30 एवरी ट्यूसडे। ये जिहड़ी कंटीन्यू 4 साल तो चल रही, यही दिन यही टाइम। एक क्लास ईवनिंग की शुरू करांगे, क्योंकि कईयां ने ये गल कही भी सवेरे काम का टाइम होंदा है, वर्किंग डे विच टाइम नहीं लगता, तो क्यों ना शाम की एक क्लास शुरू की जाए। तो एक क्लास हुण शाम की शुरू करांगे। मैं बेनती करांगा गुरुद्वारा साहिब सुबंग उत्थों दे ही खिमा करना सुबंग जाया दे भैन बचन कौर जी अते सरदार प्रीतम सिंह जी, परटौन सिंह जी, इन्हां दा नंबर जिहदे कोल भी होवे, या एक फॉर्म है वो असीं प्रबंधकां तक पहुँचा देंगे WhatsApp के राही। वो फॉर्म के उत्ते नंबर लिखे ने। भैन बचन कौर जी 4 सालों तो ही इस क्लास के इंचार्ज ने, वो संभाल रहे हैं, तो अगों भी उन्होंने संभालना है। मैं बेनती करांगा कि उन्होंने दे नाल संपर्क करके अपना नंबर दे के तुसी ग्रुप में शामिल होवो अते क्लास ज्वाइन कर सको, लाहा लै सको। इस क्लास दे विच गुरबाणी का कोई सवाल होवे, गुरबाणी बारे कोई जानना होवे, गुरबाणी ग्रैमर नूं जानना होवे, औंकड़ क्यों लगता है, औंकड़ क्यों नहीं लगता, कित्थे बोलिया जाता है, कित्थे नहीं बोलिया जाता, सियारी कित्थे लगती है, कित्थे नहीं लगती, ये बारे जानकारी लैनी होवे, या गुरबाणी क्लास लानी होवे जिहदे विच असीं कोई भी बाणी लैके उस बाणी की विचार करते हैं। फिर उस तो बाद क्वेश्चन आंसर सैशन होंदा है, कई सवालों के जवाब जिहड़े ने वो मिल जाते हैं। मैं बेनती करांगा जरूर संगतां लाहा लैण अते जरूर कॉन्टैक्ट करन। इन्नी को बेनती करदिआं मैं खिमा दा जाचक हाँ। समा सी 8 बजे तक का, तो पूरे 8 बज गए ने। इस वास्ते इत्थे तक बेनती प्रवान करो।